Hello everyone. Now in this video we will discuss how to draw the molecular orbital diagram or molecular orbital picture for boron, carbon and nitrogen molecule. So atomic number of boron is 5, carbon is 6, nitrogen is 7. I will draw for nitrogen and in between boron and carbon I will cover. But it is instructed to you that you draw 3 different diagrams. Okay. I will give the proper instructions with the help of which you can draw 3 different diagrams. I will draw for nitrogen. So for nitrogen molecule means there are 2 nitrogen atoms. Atomic number of nitrogen is 7. So configuration will be 1s2, 2s2, 2p3. So same for both the nitrogen atoms. Okay, so I am not writing 2 times. Now you see 1s, 2s you have already got from the previous video. So 1s2, 1s2, this is nitrogen atom number 1, this is nitrogen atom number 2, and here we are drawing nitrogen molecule. In between the molecular orbitals we are drawing. So here I will write 2s2, 2s2, okay. Now I will fill this which you already know how to do, 1s2, 2s2 of 1 nitrogen and 1s2 and 2s2 of the second nitrogen. Now when they combine, here you will get 2 electrons and here also 2. How? Because 2 plus 2 is 4, so 2 here and 2 here. This is called as sigma. The name of the thing you can take from here, sigma 1s2. The same you write here. But as it is the anti-bonding, you put a star. This is the difference. The energy of this is lower than the orbitals and this is having higher energy than the atomic orbitals. Here it is sigma 2s2 and this is sigma star 2s2. So I hope you can understand the difference. Whatever is the orbital's name here, the same we are writing. See, 1s2 we have written, only sigma we are prefixing. Same, 2s2 we have written, sigma prefixed. When the lower one I told you is the bonding molecular orbital and the upper one is the anti-bonding molecular orbital. In one level, the lower is bonding, the upper is anti-bonding. The energy of bonding is less than the atomic orbitals and energy of anti-bonding is more than the atomic orbitals. इसीलिए इसको atomic orbital के अगर ये level है atomic orbital का, ठीक है, ध्यान से देखिए ये level है atomic orbital की, तो इससे नीचे बने हैं एंटी बॉन्डिंग, सॉरी इनसे नीचे बने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये बीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है. और इनसे ऊपर बने हैं एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो जो नीचे बना उसकी एनर्जी कम, जो ऊपर बना उसकी एनर्जी ज्यादा. इसलिए ये डायग्राम ऐसा है, स्टेयरकेस जैसा. देन यहाँ 2s2 है, यहाँ भी 2s2 है, बस सिग्मा प्रीफिक्स करना है क्योंकि एसएस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है. Now 2 and 2, 4 electrons, so 2 will be here and then the rest 2 will be here. यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो थ्योरी पढ़ाई थी मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, वहां पे मैंने आपको पोस्टुलेट्स दिए थे, वहां आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं. बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होती है और एंटी बॉन्डिंग की ऊपर होती है. ऐसे ही इस डायग्राम में ये बीएमओ है, यानी बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब हमने सिर्फ कितना बनाया है? 2s2 तक. मगर हम बात कर रहे हैं बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन पी में भी जा चुका है, ठीक है. तो P में गया तो अब इसके ऊपर बनेगा 2p, ठीक है. अब वो कैसे बनेगा, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हम पहली बार P बनाने जा रहे हैं. तो हमें मालूम है नाइट्रोजन के एक एटम में ऐसा कुछ होता है 2p3, ठीक है. एक तरफ बना ले, ट्राई करें इनका सबका लेवल एक जैसा आए. आई डोंट हैव मच ऑफ स्पेस हियर, तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर ड्रैग कर लिया है, बट ये सब एक के नीचे एक आने चाहिए. हियर ऑल्सो दिस इज 2p3, ओके. सो you'll have to remember on one side of the diagram you are covering the configuration of one nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3. Other side 1s2, 2s2, 2p3 for the second nitrogen. अगर ये बोरॉन होता,
अगर ये बोरॉन होता तो हम यहाँ 2p1 और 2p1 लिखते और डायग्राम बना देते। अगर ये कार्बन होता तो 2p2 2p2 लिखते और डायग्राम बना देते। पर मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन का बना रही हूं, जिससे आपको बोरॉन और कार्बन साथ में समझ आता जाएगा, सब में इतना सेम रहेगा। अब आप ध्यान दें कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों नाइट्रोजन के कंबाइन करेंगे तो 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा बनते हैं, ध्यान दें, ये 6 कुछ ऐसे बनते हैं। इनका रीजन मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। इन 6 में से 3 जो है, 3 कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है, 3 नीचे और इसी तरह 3 ऊपर। And the last one at the top. So 3 atomic orbitals and 3 more gave you 6 molecular orbitals. यहाँ तीनों एक साथ बनते थे, यहाँ अलग अलग बने हैं। अब ध्यान दें फिर से, ये क्या था, px py pz, सिमिलरली px py pz, और ये 2 का px py pz है। तो जो दो साथ में बनाएंगे ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ये होगा पाई 2px, ये होगा पाई 2py, xy एक साथ रहता है। और z ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना है आपको। तो हम इसे लिख रहे हैं सिग्मा 2pz, ये अलग है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लैरिफिकेशन दूंगी, अभी आप सिर्फ इसको समझें कि px और py एक साथ बने हैं और सिग्मा 2pz अलग बना है। देखिए आपने अगर ऐसा ऑर्बिटल का डायग्राम पढ़ा है तो आपको याद होगा कि नहीं, एस ऑर्बिटल का नहीं, सॉरी, पी ऑर्बिटल का। तो पी में px py pz 3 होते हैं, अलोंग अकॉर्डिंग टू द एक्सिस दे आर ओरिएंटेड। सो px x एक्सिस पे होता है, py y एक्सिस पे और pz z एक्सिस पे होता है। तो इस हिसाब से है ये। तो px और py जो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं और pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जो अकेला ऑर्बिटल आएगा वो हमेशा pz होगा और जो दो साथ आएंगे वो हमेशा px और py होंगे। ये कहीं भी हो आपको याद रखना है। अब जैसे आपने यहां लिखे वैसे ही ऊपर लिख दें स्टार लगा के। तो आपने लिखा था पाई 2px पाई 2py, इसमें एक स्टार जोड़ दें तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, सिग्मा 2pz स्टार। इतना सा अंतर होता है बस, ठीक है। अब आप फिलिंग समझें, 3 इलेक्ट्रॉन यहां 3 यहां, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। आपने देखा होगा मैंने पहले यहाँ सिंगल सिंगल भरा, फिर यहाँ पेयरिंग की, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया। मैंने ऐसा नहीं भरा था कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं भरा। मैंने कैसे भरा, 1 2 3 4 5 6, यानी जैसा ड्रॉ किया है वैसी ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है और उसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब आप ध्यान दें, अगर ये बोरॉन या कार्बन होता, ये तो नाइट्रोजन है, अगर ये बोरॉन होता तो क्या होता, बोरॉन होता तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन में 2p1 आता है ना, 2p1 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता और एक यहाँ होता। तो 2p1 का मतलब हम एक यहाँ और एक यहाँ भर देते, सिंगल सिंगल, ठीक है। फिर आता कार्बन, तो कार्बन में होता है 2p2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 का मतलब हमें 4 बनाने थे, तो 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं। मैं इस वीडियो के बाद आपको बोरॉन और कार्बन का सिर्फ ये लेवल बना के बता दूंगी, इतना तो आपको मालूम है कि कैसे करना है, ये मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा दूंगी। फिलहाल आई होप कि आपको क्लियर है कि नाइट्रोजन कैसे बनाया मैंने। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 3 आर हियर, टोटल इज 6, तो 1 2 3, यहां नहीं आएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6, जैसा ड्रॉ है वैसा भरे। इससे नीचे बने हैं ये, इस डायग्राम का बहुत साइंटिफिक मीनिंग है। मीनिंग ये है कि जो नीचे बना है उसकी एनर्जी ऊपर वाले से कम है, इसीलिए ये ऐसे बने हैं, ठीक है। ये 1s 2s के नीचे बना है, मतलब 1s की एनर्जी 2s से कम है, ये मतलब है। इस डायग्राम में भी ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ऊपर के 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
तो आपको दिख रहा है सब में नीचे वाला बॉन्डिंग है और सब में ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। अब आपसे कोई बोले कि N2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बहुत आसान है, लिखते चले जाएंगे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इस पे आ जाए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब यहां आ जाए, यहां ध्यान दें कि पाई 2px2 की एनर्जी पाई 2py की एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए इनको ऐसे लिखते हैं। अगर आप कॉमे लगा के लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, बट मुझे पहली बार पढ़ाना है इसलिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों साथ बने इसलिए इनकी एनर्जी बराबर है, और ये इससे ऊपर बना है मतलब इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। तो यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूं, फिर आएगा सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये पावर में जो नंबर आप लिखते हैं उसका मतलब होता है उस ऑर्बिटल में। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका नाम है सिग्मा 2pz, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो पावर लगाएं 2। ऐसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो पावर लगाएं 2। समझ आ गया? सो ये सब जगह लगी हुई, यहाँ पर नहीं लगी थी और यहाँ नहीं लगी है, इसका मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये नाम ना लिखें, बट आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए पढ़ाना जरूरी था। तो ये हुआ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता दिया है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर बहुत से रीजनिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल निकालना है, काउंट करें, फॉर्मूला था हाफ NB माइनस NA, हाफ तो लिखा है। बॉन्डिंग का मतलब सबके नीचे नीचे वाले में 2, 4, 6, 8 और 10, सो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं? नीचे वाले बॉक्स देखकर। ठीक है, सब डायग्राम्स में, ये एक डायग्राम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हर डायग्राम के नीचे वाले बॉक्स गिन लें। ठीक है, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, सबका ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 2 4, 10 माइनस 4, so this is half into 6, what you got? 3. so bond order of N2 is equals to 3। बिल्कुल सही आया है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है। so this is correct, this is how you are supposed to do। अब हम आयंस के लिए ट्राई करते हैं। सपोजिंगली हमें N2 प्लस मॉलिक्यूल बोला किसी ने, N2 प्लस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाले। ठीक है, कैसे करेंगे? N2 माइनस दे दिया, कैसे करेंगे? जब तक आप बहुत परफेक्ट नहीं होते तब तक आप क्या करें? डायग्राम बनाते चले। सिर्फ क्या करें? इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इसे भूल जाएं। इसे भूल जाएं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप सिर्फ P बनाएं। अगर आपको एग्जाम में बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तब तो आप पूरी डायग्राम बनाएंगे, पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोला है तो सिर्फ इतना बना ले। इसका क्या है? देखिए, ये क्यों कैंसिल करने को बोल रही हूँ? क्योंकि बॉन्डिंग कितना है यहाँ? 4, और एंटी बॉन्डिंग भी 4 है, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो इसका कैलकुलेशन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मैंने ये बोला मैं आपको अभी करके भी बता दूंगी, बट अभी आप सिर्फ ये बनाएं, सिर्फ P बना ले। ठीक है, सिर्फ P ड्रॉ कर लें। केवल P ड्रॉ करें, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, और थोड़े समय बाद आप बिना ड्रॉ किए कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया रफ डायग्राम। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है N2 प्लस। N2 प्लस का क्या मतलब है? 2 नाइट्रोजन एटम थे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन दोनों का 1s2 2s2 2p3 था। ठीक है, यानी 2 बार 1s2 2s2 2p3 था, क्योंकि 2 एटम्स थे। अब यानी ये 2 एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन में से आपको 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस है। तो आप एक को 2p3 बना लो, एक को एज इट इज बना लो, और एक 2p3 से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो, तो यहाँ क्या है? 2p2 हो गया। आई होप क्लियर हुआ। प्लस का मतलब क्या है? कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दूसरे का भी 7, टोटल कितने हुए? 14। जब ये N2 बना
तो 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने बचे 13। तो ये 13 के लिए बन रहा है ना 1s2 2s2 2p3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और मैंने बोला इस 3 से एक माइनस कर लो तो कितने बचे 2, तो 11 + 2 = 13। क्लियर है? इसलिए यहां हमने कम बना लेना है। बहुत इजी है ये, देखिए 2p3 बन गया 2p2 बन गया। अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, सो 1 2 3 4 5। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया N2+ के लिए। N2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ NB - NA। आप चाहें तो पूरा 1s2 2s2 से कैलकुलेट करें, आप चाहें तो आप सिर्फ इतने से कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। मैं आपको पूरा करके बताऊंगी और अलग से भी करके बताती हूँ। देखें, मैं आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रही हूँ N2+ का पूरा। मान लेते हैं इसके नीचे 1s2 2s2 है, ठीक है, 1s2 2s2 भी है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 2 4 4 और 4 8 और 9, हाफ 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 2 4 और यहां कुछ नहीं है यानी -4। सो यू आर हैविंग हाफ इंटू 5 दैट इज 2.5। ये 2.5 कैसे आया? मैंने पूरा 1s से लेकर के यहां तक काउंट किया। मैंने यहां बना नहीं रखे, बट मैंने इस डायग्राम के नीचे एज्यूम कर लिया था कि ये 1s और 2s है। इसको पूरा काउंट करके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मैंने ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला। अब मैं आपको सिर्फ इस डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाती हूँ। अब देखें सेम आता है क्या। फिर से फॉर्मूला लिख लिया, हाफ, सिर्फ इसके बॉन्डिंग काउंट कर लें, कितने हैं 5, माइनस एंटी बॉन्डिंग है क्या, नहीं 0, हाफ इंटू 5 फिर से 2.5 आ रहा है। सो ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो मैंने सेंटेंस बोला था कि 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल होके 0 बच गया, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या पूरी की करें, दोनों की बात सेम है, दोनों में सेम आंसर आएगा। आप पूरा 1s2 से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग काउंट करें या सीधे 2p से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आता है। इट्स योर विश कि आप कितना लंबा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ओके, डायग्राम बनाते समय भी ध्यान दें कि जब आपके 2p शामिल हो जाते हैं डायग्राम में तो आप 1s ड्रॉ करना छोड़ सकते हैं, आप सीधे 2s से ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे 2s से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ करें और ये ड्रॉ कर दें, ठीक है, आप ये ड्रॉ कर दें और ये ड्रॉ कर दें। ये ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब 1s और 2s का ड्रॉइंग तो सेम है, देखो एकदम सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो जब 2s का लेवल पार हो जाता है, माने आप 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करने लगते हो, यू टॉक अबाउट बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो आप 1s2 ड्रॉ करना छोड़ सकते हो, यू कैन ओमिट, आप भूल जाओ कि ये है, इतना ड्रॉ कर लो, दिस मच। सो दिस इज फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर N2+ मॉलिक्यूल। हमारा क्वेश्चन था कि हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना था, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना था N2 N2+ और N2- का, ठीक है। तो मैं N2- आपको पीछे के पेज पे करके बताती हूँ। नाउ यू सी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट N2-। अब जैसे N2+ में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, N2- का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है। तो N का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 टोटल हुआ 14, एक बाहर से आ गया तो +1, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक। कितने के लिए करना है 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब थोड़ी देर बाद मैं आपको नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन ये बोलना छुड़वा दूंगी। आई विल लेट यू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। आप 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रॉ करने जा रहे हो, तो सीधे P बना ले, सीधे P बनाए, नो 1s 2s डायरेक्ट, क्योंकि हमें बॉन्ड ऑर्डर बोला है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बोला है ड्रॉ करने को, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बोला है, तो आप सिर्फ ये डायग्राम बना सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये ले, ठीक है। बट अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम ये पिक्चर भी बना रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ऑल्दो आई एम ड्रॉइंग इट वेरी रफली बट दैट्स ओके। अब आप देखें, आपने क्या करना है, एक तरफ 7 इलेक्ट्रॉन बना ले, एक तरफ 8 बना ले, यानी एक तरफ 2p3 और एक तरफ 2p4, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है। तो ये 3 और 4 कैसे बनेंगे 3 एंड दिस इज द 4th वन। टोटल काउंट कर लें कितने 7। अच्छा, यहाँ एक डाउट आ रहा होगा, हम यहीं पे क्यों एक बढ़ा रहे थे और यहीं N2+ में यहीं पे क्यों एक कम कर रहे थे। आपकी मर्जी, आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है।
that is hardly going to make any difference. तो 4 and 3 is 7. So 1 2 3 4 5 6 7. ये N2 माइनस के लिए ऑर्बिटल पिक्चर. ठीक है, अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA. इट इज इक्वल टू हाफ. बॉन्डिंग कितने हैं? 6 माइनस 1. सो हाफ इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2.5. तो हमें क्या मिला? N2 के लिए, N2 प्लस के लिए और N2 माइनस के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं. एंड वी हैव गॉट बॉन्ड ऑर्डर एज 3. 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5. दिस इज आंसर. सो आप किसी भी स्पीशीज के लिए, N2 2 माइनस के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे. यहां पर एक स्पीशीज और बना ले, N2 2 माइनस. ये N2 माइनस था, ये N2 2 माइनस. अगर N2 2 माइनस होता है तो क्या होगा? इसी डायग्राम में इधर भी 2p4 कर लेना, तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. कैसे हुए? 4 और 4 8. सो 2 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू बॉन्डिंग हो गए आपके 6. बॉन्डिंग तो बदले नहीं है, एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया एक, 6 माइनस 2. सो हाफ इंटू 4. So 2 to the 4, bond order is 2. So this is how you can do it. So I hope आपको समझ आया नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं और नाइट्रोजन के डिफरेंट स्पीशीज, आयनिक स्पीशीज के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं. So in next video I will tell how to make the molecular orbital diagram for oxygen molecule. Now let us calculate and draw the molecular orbital diagram for oxygen, fluorine and neon molecule. Now you might be wondering कि हमने जो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को एक अलग उसमें रखा पेयर में और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को एक अलग उसमें रख रहे हैं. यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनती है उसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस आता है जिसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं. ध्यान से देखिए 1s 2s सबका सेम बनता है, p ऑर्बिटल में डिफरेंस आता है. p ऑर्बिटल जब आप ड्रॉ करते हैं तो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. तो मैं सिर्फ p बना रही हूँ, उसके नीचे आप 1s और 2s बाय डिफॉल्ट मान लें कि ड्रॉन है. ठीक है, ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे, नियॉन तक की बात कर लेंगे. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन इज 9, नियॉन इज 10. सो 2 ऑक्सीजन है मतलब 8 और 8 2 बार है. 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो दिस इज 2 टाइम्स. तो ये यहां बन रहा है आपका 2p4. ओके, अब यहां मैं बनाने जा रही हूं आपके p ऑर्बिटल्स. ध्यान दें, ये सी. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, नाइट्रोजन में मैंने क्या किया था, ये 2 नीचे बनाए थे और एक ऊपर बनाया था. ये ऊपर का तो एंटी बॉन्डिंग वाला डायग्राम तो सेम है, बट ऑक्सीजन में कुछ उल्टा सा हो गया है. अगर मैं ऑक्सीजन का गोला एज्यूम करूं तो मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. मैं इन स्क्वायर बॉक्स की जगह सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इन स्क्वायर बॉक्स को सर्कल ड्रॉ कर ले, आपकी मर्जी है. मैंने यहाँ पर इसे सर्कल इसलिए ड्रॉ किया है जिससे आपके दिमाग में ये पिक्चर सेट हो जाए कि ऑक्सीजन में जब P बनाते हैं तो नीचे एक सर्कल बनता है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है डायग्राम में. यहाँ सिग्मा 2pz नीचे बनता है और पाई 2px और पाई 2py ऊपर बनते हैं, जबकि नाइट्रोजन में ये रिवर्स था. देखो ये तो सेम है, ये तो वैसे ही बना है. ये पाई स्टार 2px अपनी जगह है, पाई स्टार 2py अपनी जगह है और ये सिग्मा 2pz अपनी जगह है स्टार वाला. तो बॉन्डिंग में चेंज आया है, एंटी बॉन्डिंग एज इट इज है. यहां कोई चेंज नहीं, चेंज यहां है. नाइट्रोजन में क्या था, इसका उल्टा था. ठीक है, नाइट्रोजन में आप क्या करते थे, मैं आपको दिखाती हूँ. साइड में ही ड्रॉन है, ये देखें. नाइट्रोजन में आप 2 नीचे बनाते थे, 1 ऊपर बनाते थे. बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ. एंटी बॉन्डिंग तो सेम है. यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल्स लिखे नहीं थे जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे. तो ये था आपका 2px2 पाई 2py2, दिस वॉज योर सिग्मा 2pz2 और ये था पाई स्टार 2px1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है
और ये पाई स्टार 2p/1 ऐसा था। नाइट्रोजन में नीचे 2 थे, ऊपर 1 था बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन में क्या हो गया उसका उल्टा। ये कंपैरिजन देख लें आप, ऑक्सीजन में नीचे 1 है, ऊपर 2 है बॉन्डिंग में, और नाइट्रोजन में नीचे 2 थे, ऊपर 1 था। ये डिफरेंस क्यों आता है इसके लिए मैं अलग से आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी, बट आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। तो क्या ध्यान रखें, ये 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं पूरी स्क्रीन पर। ये अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप याद कर लें कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में डायग्राम बनता है 2-1-2-1, देखिए 2-1-2-1, और ऑक्सीजन में डायग्राम बनता है 1-2-2-1, 1-2-2-1, 2-1-2-1। जैसा याद होता है, अगर आपको ये 2-1-2-1 और 1-2-2-1 याद होता है तो ऐसे याद कर ले। ये वैसे कई लोगों को ऐसा समझ में आता है और कई लोगों को सिर्फ दिमाग में सेट कर ले ऑक्सीजन के सर्कल से। ऑक्सीजन में एक सर्कल है तो इनके डायग्राम में नीचे एक सर्कल आता है, और नाइट्रोजन में ऊपर एक सर्कल आता है, अगर ये सर्कल होता तो। ठीक है, तो ये अंतर है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों का अलग अलग है। पी का रिवर्स हो जाता है, नाइट्रोजन में नीचे 2 ऊपर 1 होता है, ऑक्सीजन से चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का तीनों का पी जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एरो बनाते हैं एनर्जी का, ना भूले बनाना। अब 2p4 देखें, 3-4, हियर ऑल्सो 2p4 इज 1-2-3-4। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आपको फिल करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम देख रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा पेयरिंग नहीं कर रहा है जब तक के ऑर्बिटल में एनर्जी के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन सिंगली ना फिल हो जाए। तो अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके सामने बन चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई और O2 मॉलिक्यूल अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हमें दिख नहीं रहा, हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमें पता है, हम सीख चुके हैं कैसे बनेगा, तो हम ये लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ध्यान रखें, इसकी जगह हम सिर्फ के भी लिखते हैं कई बार। इस के का मतलब है एक की के शेल, दूसरे की भी के शेल फुल है। ये सिग्मा 1s2 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, के शेल को, इसलिए हम इसकी जगह के भी लिखते हैं। फिर बाकी पूरा लिखते जाए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये इतना आपने ड्रॉ नहीं किया है, इतना आप सीख चुके हैं कि कॉमन होता है, हम सीधे पी से बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा 2pz2। यहाँ सब जगह पावर्स डालें, ये पावर का मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नहीं लिखाएंगे तो आंसर इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर आ गया है पाई 2px2 पाई 2py2, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। इनको एक लाइन में लिखना चाहिए, बट एक लाइन में अकोमोडेट नहीं हो रहे। मैं एक लेवल बता रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। सिग्मा यहाँ तक हो चुका है, फिर पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक, जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल है वहां तक का आपको लिखना है। ओके, यहाँ मैंने इक्वल टू का निशान लगाया, यहाँ भी लगा लें। इसका मतलब होता है इनकी एनर्जी आपस में बराबर है। अब ध्यान दें, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से कम है, इसलिए इसको इसके नीचे बनाया है। जबकि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में इस सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से बड़ी होती है, इसलिए इसको इसके ऊपर बनाया। तो जहां भी ये नीचे ऊपर बने हैं वहां एनर्जी के टर्म्स में बने हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक डायग्राम पी का ऐसा बनता है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन से ऐसा बनने लगता है, इसका जवाब मैं आपको दूंगी, यहाँ नहीं, एक सेपरेट वीडियो में। दैट विल बी हार्डली फॉर 2-3 मिनट्स, बट आई विल गिव यू इन रिटन द आंसर। ऑल्दो नोबडी आस्क, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन में सिग्मा 2pz की एनर्जी XY से कम होती है, इसलिए नीचे 1 बनता है। और पी में, पी का जो डायग्राम है वो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में इसका जस्ट अपोजिट बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपको किसी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने को बोला है। ऑक्सीजन का बोला है, आपने नीचे ये बना दिए और ऊपर ये बना दिए, तो 0 मिलेगा। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम हर बार बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते थे, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हाफ Nb माइनस Na। फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक। सो हाफ बॉन्डिंग क्या होते हैं, जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 हैं, और इसी समय एंटी बॉन्डिंग गिल्ले 2 हैं। सो 6 - 2
So half into 4 is 2. So we know oxygen is the double bond, इसीलिए 2 आया है. ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर हमें जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जानकारी भी देता है. अब ये तो हुआ ऑक्सीजन. ठीक है, मान लेते हैं कि हमसे किसी ने कहा था कि आप फ्लोरीन के लिए बनाइए. तो फ्लोरीन में क्या होता, फ्लोरीन में मैं इसी में ओवर राइटिंग कर लेती हूँ, आप अलग डायग्राम बनाइएगा. मैं मान लेती हूँ यहाँ 2p5 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है. यहाँ भी 2p5 हो जाएगा. तो फ्लोरीन के लिए कैसे होगा, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये हो गया आपके फ्लोरीन के लिए. बॉन्ड ऑर्डर बोल ले कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा फ्लोरीन के लिए. तो हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग सेम है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4, बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ इंटू 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. यानी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनता है. ठीक है, अब नियॉन की बात कर लेते हैं. इसी डायग्राम में नियॉन में क्या हो जाता है 2p6, यहाँ भी 2p6, तो यानी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर लेंगे यहाँ तक, यहाँ भी 6, टोटल कितने हो गए 12. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब भर गए. ऑल आर फिल्ड. सो हाउ टू डू इट, हाफ NB माइनस NA. सो यू आर हैविंग हाफ कितना 6 बॉन्डिंग 6 एंटी बॉन्डिंग, 6 minus 6 half into 0 is 0. So bond order of any two molecule is 0. नियॉन एक नोबल गैस है, क्या वो मॉलिक्यूल बनाएगी, नहीं बनाएगी. यानी कि अगर आप नियॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो वो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो मैंने आपको एक ही डायग्राम में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन बनवा दिया, आप अलग अलग बनाइए सो दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट. नाउ फर्दर वी विल calculate the bond order and we will have some practice to how to compare the bond order. अगर हमें क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं. ध्यान दे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने को तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता नहीं है, थ्योरी एग्जाम में स्कूल में पूछ सकते हैं. यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में काम आती है वो है बॉन्ड ऑर्डर. कॉम्पिटेटिव के पर्पज से फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA. जैसे ही आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, या मान लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको मॉलिक्यूल दिया O2 माइनस O2 2 माइनस, और बोला इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, या किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है किसका कम है बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना. अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे. ठीक है, कतई जरूरत नहीं है. अब मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना बता देती हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे. तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 और 8 16 मॉलिक्यूल है ना, सो 16 लिख रही हूँ इसलिए. एक ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 2 जा 16. O2 माइनस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से ले रखा है तो 17. 2 माइनस एक और बाहर से ले रखा है यानी 18. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 16 17 18. क्लियर हो गया, इतना क्लियर है. सो वी वर सपोज टू डिस्कस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2 माइनस एंड O2 2 माइनस. फिलहाल अभी हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना सीख लिया है, तो हम फॉर्मूला यूज करके और NB माइनस NA करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं. तो हमने O2 के लिए निकाल लिया था, पीछे डायग्राम बना रखा था हमने, वही छोटा सा रफ डायग्राम हम बना लेते हैं. आप अगर कोई ट्रिक नहीं चाहते, आप डायग्राम से बनाना चाहते हैं, तो आप जो है जो पीछे डायग्राम सिखाया है उसी को रफ सा बना लें. ये रहा 2p4 नॉर्मल ऑक्सीजन की बात हो रही है. यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ 2, ये पूरा भरा रहता है ना, 4 4 होता है 8, और इधर आ जाए. सो ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है. 8 इलेक्ट्रॉन्स माने 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, यहाँ सिंगल. तो बॉन्डिंग होते हैं 6, एंटी बॉन्डिंग होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीजन में कुछ यूं चलता था, हाफ इंटू 4. सो बॉन्ड ऑर्डर आता था 2, यानी O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2. अगर O2 माइनस का बोले तो O2 माइनस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ले रखा है, यानी 2p5 हो जाएगा एक तरफ. तो 2p5 मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो जाएगा. एंटी बॉन्डिंग एक और बढ़ रहा है, तो हाफ 6 माइनस 3, तो हाफ इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1.5, यानी O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5.
और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आएगा 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगा और आपके हाफ 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 4, तो इट विल बी हाफ इंटू 2, देखिए 1 आ रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके निकालें। हमारा जवाब आ गया है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 का और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई O2 प्लस दे दे तो आप इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाकर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप नोट करें, मैं उसमें नाइट्रोजन को बेस ले लूंगी। अगर आप नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो होते हैं 14। ठीक है, इसी को मैं बेस ले रही हूँ 14। 14 से नीचे की काउंटिंग लिखें 13, 12, 11 और 10। ऊपर की लिखें 15, 16, 17, 18। अधिकतर इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जब आपने कैलकुलेट किया था नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया था 3। बस इतना आपको याद रखना, इतना। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, वो काम करेगी। ये 14 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन है, एक में 7, एक में 7, टोटल कितने हो गए? 14। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, अगर किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 आते हैं, ठीक है, किसी स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन्स 15 आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 13 आते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 16 आते हैं तो 2 होगा। 12 आते हैं तो भी 2 होगा। 17 आते हैं तो 1.5 होगा और 11 आते हैं तो भी 1.5 होगा और 18 आते हैं तो 1 होगा और 10 आते हैं तो भी 1 होगा। अब आप देखिए, ये ट्रिक है। बस आपको क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 14 से याद रखें। आपको ये ट्रिक के लिए ये जो मैंने टेबल बनाई ये भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 14 से 3 याद होना चाहिए। 14 से पीछे की गिनती लिख लें, 14 से आगे की गिनती लिख लें और 3 से 0.5 कम करते जाएं। 0.5 दोनों तरफ कम करना है। इधर भी 0.5 करना है, इधर भी 0.5 कम करना है। भाई ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा कभी पे आपने 4 बॉन्ड देखे हैं किसी भी चीज में? नाइट्रोजन मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कभी आपने कोई ऐसी एक स्पीशीज देखी कि ऐसे 4 बॉन्ड बना रखे हो? कभी नहीं बनते। तो मैक्सिमम बॉन्ड क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 2.5, 2, 1.5, 1, मिनिमम 1.5, 1 होता है। और बॉन्ड 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर बॉन्ड 0 आ गया मतलब नोबल गैस की बात हो रही है, नियॉन और हीलियम। तो 0 की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो नोबल गैस हो जाती है। तो बॉन्ड क्या पॉसिबल है? या तो 3 बॉन्ड पॉसिबल है, या 2.5 पॉसिबल है, या 2 पॉसिबल है, या 1.5 पॉसिबल है, या 1 पॉसिबल है। तो ये हो गई ट्रिक। अब ये ट्रिक अप्लाई कैसे करें? अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल पे मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के सॉल्व करना बताया था। अब मैं आपको अपनी ट्रिक से सॉल्व करना बता देती हूँ। मान लेते हैं कि आपको दे दिया है O2, दे दिया है N2, दे दिया है N2 माइनस, दे दिया है O2 2 माइनस और बोल दिया इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या बता दीजिए कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। हमको कुछ नहीं करना है, अभी अभी हमने अच्छी सी ट्रिक सीखी है। हम क्या करेंगे? O2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 के मिला के 16। नाइट्रोजन में कितने? 7 and 7 14। ठीक, कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे। अब यहाँ आ गया चार्ज, तो 14 पे 1 माइनस यानी 15। 14 पे 1 माइनस का मतलब नाइट्रोजन का भी 14 निकाला था ना, इसलिए मैंने सीधे माइनस चार्ज के लिए 1 जोड़ लिया। O2 2 माइनस यानी O2 होता है 16, 2 माइनस माने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं, ये रहा 18। अब आपके ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए आप अपनी टेबल में देखिए, 16 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 14 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और 18 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। आ गया आपका आंसर। आंसर है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है N2 का और मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर है O2 2 माइनस का। अब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में बोले आप अरेंज कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू नीड नॉट टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कैलकुलेटिंग। अच्छा, ये तो हुए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर। मान लेते हैं कुछ हेट्रो एटॉमिक आ गए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया, CN का बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया। इनको कैसे करेंगे? ये भी बहुत आसान है। कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर? 6, ऑक्सीजन के कितने? 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। साइनाइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 13। 14 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3।
और साइनाइड में 13 आ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो आप किन्हीं भी स्पीशीज का, चाहे मॉलिक्यूलर स्पीशीज हो, चाहे हिट्रो मॉलिक्यूल्स हो, माने दो अलग अलग के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ऑल्दो दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस, ये हमारे 11th के लेवल का है, बट फिर भी 11th के इस लेवल से ये लेवल निकल के आता है कॉम्पिटिटिव में, तो आपको ये भी आना चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर how to draw the molecular orbital picture and how to calculate the bond order, how to write the electronic configuration of a molecule. Everything is clear to you. Now, with the help of this video, you should try 6 molecular orbital diagrams in your copy. Okay, 6 I am telling. Nitrogen N2 molecule, ठीक है, then ऑक्सीजन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल एंड कार्बन मॉलिक्यूल। आपको समझ आया, इन तीनों का डायग्राम सेम बनता है, पी में नीचे 2 एक ऊपर, और इन तीनों का सेम बनता है। तो जो मैंने नाइट्रोजन का बनाया उसको देख के कार्बन और बोरॉन बनाए, जो मैंने ऑक्सीजन का बनाया उसको देख के फ्लोरीन और नियॉन बनाए। यू विल बी एबल टू डू एंड ट्राई टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर ऑल एंड कंपेयर. So that's all for the topic. Thank you for watching. I hope everything was clear.